Students, we are continuing the topic cell envelope. First of all, we have completed cell membrane and now the term of cell wall, and later on we'll see the cell coat if it is present there. Dear student, if you have remember, the cell envelope means to say the structure which is present around the cellular material or cell protoplasm, and basically this is made of cell wall, cell membrane, and if any other layer is present around that. So already we have completed the cell membrane. Now we are moving toward the cell wall. So cell wall, most of the student knows very well that the cell wall is present basically there in the plant cell, but here I am just going to make you clear that including the plant cell, many of the structures, many of the cells are there, those who are having the plant nature and are having the additional layer present around the cell membrane. So these are the cells where it is present, the bacteria it is having, the fungi in algae, and in the plant cell the cell membrane is having an additional external layer, external surrounding with the cell membrane, that is called as cell wall. तो बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है, दैट एडिशनल कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल. सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के जैसे लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज परमिएबल बिकॉज इट इज गोइंग टू मूव प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एक्सटर्नल मटेरियल वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू द cell membrane, and then cell membrane permit it to move inside the cell cytoplasm or not. Okay, so cell membrane is not permeable, but it is non-living structure, rigid, very tough structure, as the plasma membrane or cell membrane was very much flexible. लेकिन cell wall कैसी होगी? Rigid होगी, non-living होगी, and it surrounds the plasma membrane. Are you getting my point? So in bacteria, fungi, algae and plants, they are having an additional non-living, remember non-living but permeable rigid structure surrounds the plasma membrane that called the cell wall. Okay, so from where do the cell wall is being produced? ये सब key points है, मैं धीरे धीरे इनको लेके अंदर चलूँगा. So the plasma membrane is produced from the protoplasm itself. Cell wall is formed from the protoplasm itself. इट इज़ परमिएबल, अभी मैंने डिस्कस ही किया था. एनिमल सेल्स में एब्सेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एनिमल सेल्स हैं जहाँ पे एक एडिशनल कवरिंग मिलती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ परमिएबल because it is going to provide a passage for the water and other micromolecule and macromolecule whatever is required, and then the cell membrane will check their entry or passage, will provide the passage to enter inside the cell cytoplasm. एनिमल सेल में पूरी तरीके से एब्सेंट है, बट इन सम ऑफ द एनिमल सेल दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक कवरिंग अराउंड देम, लाइक दैट यूग्लिना एंड पैरामीशियम. यूग्लिना और पैरामीशियम में सेल वॉल तो एब्सेंट है, बट द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड एक्सटर्नली विद अ पेलिकिल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूग्लिना और पैरामीशियम में सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट है, लेकिन उनकी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेलिकल. एंड मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स आर हैविंग द पेलिकल अराउंड देयर बॉडी, दैट इज वर्किंग एज एन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. ओके, मूविंग ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में हम देखते हैं अलग अलग तरीके के हैं. बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट्स हैं, सभी में अलग अलग तरीके के मटेरियल से प्लांट्स सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. लाइक दैट इन एल्गी द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. इन एल्गी द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. प्लांट्स में हम पहले ही देख चुके हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन. सो एल्गी में सेलुलोज से बनी होगी, गैलेक्टन से बनी होगी, मैनन से बनी होगी एंड मिनरल्स से बनी होगी. मिनरल्स में एग्जांपल लिख सकते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट का. प्लांट सेल्स में दिस इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स. इन फंजाई काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. बैक्टीरिया हम पढ़ के आ चुके हैं. पेप्टाइडोग्लाइकान वाज द स्ट्रक्चर और वाज द कंपोनेंट फ्रॉम विच द सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकान? फिर से रिमेंबर करें आप लोग, पॉलीसेकेराइड के साथ में अगर एमिनो एसिड मिल जाता है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकान का फॉर्मेशन करता है. तो शुड आई रिपीट वंस अगेन, एल्गी किससे बना होता है? एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स है. प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और अदर प्रोटीन्स. फंजाई में काइटिन, ये पूछा ही जाता है. काइटिन को जनरली फंगल सेलुलोज बोला भी जाता है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. प्लांट में इन फंजाई
The cell wall is made of fungal cellulose that is called as chitin or polysaccharides. Bacteria में peptidoglycan, so I'm not discussing much more because we already have the video there and I have already discussed there the structure of bacterial cell. Okay, moving on to the next. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. सेल वॉल इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर which is made of 3 layers. Are you getting my point? The cell wall structure is a complex structure which is made of 3 layers. 3 layers में basically primary cell wall, secondary cell wall and in some of the cases tertiary cell wall, but here we will not include the tertiary cell wall. हम यहाँ पे 3 लेयर लेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और साथ में मिडिल लैमेला. इवन तो विल सी सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट द टर्सरी सेल वॉल आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल होता है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. दिस इज व्हाट द लिविंग लेयर, दिस इज व्हाट द ट्रू लेयर ऑफ द सेल वॉल. ओके, कभी कभार क्या होता है, मिडिल लैमेला को भी सम ऑफ द वर्कर्स हैज इंक्लूडेड देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इवन दो मिडिल लैमेला इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल वॉल. दिस इज द जंक्शन बिटवीन द टू सेल वॉल. तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ. द फर्स्ट ट्रू लेयर ऑफ द सेल वॉल इज the primary cell wall. This is the first true layer of the cell wall. This is formed on the new cell. जब नई cells का formation हो रहा होता है तो just after cell division the cell wall formation begins and cell wall formation जब शुरू होता है तो उस समय primary cell wall का ही formation होता है. तो this is outermost layer, थिन होती है, इलास्टिक होती है, अपोजिट टू द नेचर ऑफ द सेल वॉल. हमने देखा था थिक एंड रिजिड, नॉन इलास्टिक, बट हियर द प्राइमरी सेल वॉल इज थिन, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल एंड हियर जस्ट प्रेजेंट बिलो द मिडिल लैमेला. जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया कि कुछ एक केसेस में मिडिल लैमेला को मान लिया जाता है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, बट दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेल्स, नॉट द पार्ट ऑफ सेल वॉल. Okay, so present just below the middle lamella, it is composed of the cellulose and pectins. एक important point है, in some plant it may have hemicellulose also. In some of the plants it may have hemicellulose also. माय डियर चाइल्ड, कभी कभार हमने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, कुछ प्लांट के सेल वॉल्स को देखा होगा, दैट प्लांट सेल वॉल्स आर पार्शियली सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर की होती, पूरी तरीके से टफ नहीं होती, पूरी तरीके से रिजिड नहीं होती. उनके पीछे रीजन ये होता है कि उनके सेल वॉल में सेलुलोज की जगह पे हेमी सेलुलोज होता है. समझ में आ रहा है? यदि सेलुलोज रहेगा तो प्लांट सेल विल बी द टफर वन, बट if hemicellulose is there, hemi means half, so if hemicellulose is there तो somewhat softer cell wall will be there. हम डेट पाम में इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं. डेट पाम you can feel, you can observe the cell wall is comparatively softer than the others cell wall. तो ये क्लियर हुआ अपने को. कुछ नॉर्मली सेलुलोज से बनी हुई है और पैक्टिन से बनी हुई है, तो सेलुलोज और पैक्टिन तो सभी में रहते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस में, कुछ एक केसेस में, कुछ एक सेल्स में द सेल वॉल इज मेड ऑफ सम सॉफ्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज हेमीसेलुलोज, और उस कारण से वो सेल वॉल कैसी हो जाती है, सॉफ्ट नेचर की हो जाती है. अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो डेट पाम, वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल, वाई आई टुक दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है. इन पीएमटी इट हैज बीन आस्क्ड. खास बात है, the primary cell wall, the meristematic and parenchyma cells have only primary cell wall. बहुत important point है for the NEET and the PMT students. मेरिस्टेमेटिक सेल और पेरेनकाइमेटस सेल, प्राइमरी सेल्स होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्राइमरी स्टोरेज सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइडिंग प्राइमरी सेल्स होती हैं. तो इन दोनों में केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है. सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल इज एब्सेंट, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज देयर. और एक और क्वेश्चन है, अगर कभी पूछा जाता है कि विच लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कंसिडर्ड एज लिविंग, so that is the primary cell wall. Primary cell wall may considered as the living layer of that one. So once again I am repeating all the points here. First true layer of the cell wall, it formed on the new cells, outermost layer that is thin and elastic. It presents just below the middle lamella, composed of cellulose and pectin. Important point. और कुछ एक केसेस में यहाँ पे हेमीसेलुलोज भी होगा, और हेमीसेलुलोज जहाँ पे होगा वहाँ पे वो सॉफ्ट नेचर की हो जाएगी. Meristematic cells and the parenchymatous cells have only primary cell wall. Okay, clear है ये concept अपना. Moving on to the second layer और second structure of, हमने बोला था 3 layered structure है, primary cell wall, secondary cell wall and the middle lamella. Secondary cell wall present ओनली इन द मैच्योर सेल. जस्ट हमने अभी देखा था कि प्राइमरी सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और पेरेनकाइमेटस सेल होती है, जो फ्रेशली फॉर्म्ड सेल होती है, उनमें केवल क्या मिलता है, प्राइमरी सेल वॉल.
जैसे जैसे सेल्स में मैचुरेशन होता है, परमानेंट सेल होना शुरू हो जाती है, तो द सेल वॉल इज गार्डेड आर सराउंडेड विद एन एडिशनल लेयर दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होना शुरू होती हैं, परमानेंसी आती है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, तो दे आर बीइंग सराउंडेड विद एडिशनल लेयर ओवर द प्राइमरी सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। सो प्रेजेंट इन द मैच्योर सेल जस्ट बिलो द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे की तरफ सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल होगा। अभी डायग्राम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल होगा। प्राइमरी सेल वॉल वॉज थिन एंड इलास्टिक, नाउ दिस इज रिजिड, थिक, नॉन इलास्टिक। पूरी तरीके से चेंज हो गया नेचर ऑफ सेल वॉल, क्योंकि अब ये मैच्योर सेल की बात कर रहे हैं। सो द सेकेंडरी सेल वॉल इज रिजिड, थिक एंड नॉन इलास्टिक। किससे बना होगा? वो सेलुलोज और पेक्टिन से था, तो यहाँ पे लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन ये टफनेस प्रोवाइड करते हैं, ये लिग्निफिकेशन, वुड का फॉर्मेशन करते हैं। थिकनिंग कैसे आती है प्लांट सेल में? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन, और इनके डिपोजिशन से थिकनेस आएगी। दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द वुड मटेरियल टू द प्लांट। सो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दीज लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन, द सेकेंडरी सेल वॉल इज रिजिड, टफ एंड थिक. So the next point that I am going to discuss, that due to these thickening, the plant increased in form of the lignified and suberized woody part. मैंने just अभी आपके साथ में डिस्कस किया कि इनके डिपोजिशन के कारण वुडी मटेरियल का डिपोजिशन होता है, प्लांट में थिकनिंग आती है। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में थिकनिंग किसके कारण आती है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन। बेसिकली लिग्निन एंड सुबेरिन आर देयर, और लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण वुड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कुछ जगह पे हम वर्ड यूज़ करेंगे आगे चल के लिग्निफाइड स्ट्रक्चर, तो जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो वो लिग्निफाइड स्ट्रक्चर होगी, जहाँ सुबेरिन का डिपोजिशन होगा तो वो सुबेराइज स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके डिपोजिशन के कारण वुड का फॉर्मेशन होगा, तो दोज वुड्स आर कॉल्ड एज लिग्निफाइड एंड सुबेराइज्ड वुड। सेकेंडरी सेल वॉल आगे चल के तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, तीन लेयर में बटी होती है। द सेकेंडरी वॉल इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो S1, S2 और S3 कहलाते हैं। तो तीन लेयर होता है सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी के लिए एस वर्ड का यूज किया, S1, S2 एंड S3। देयर आर थ्री लेयर्स इन सेकेंडरी सेल वॉल, S1, S2 एंड S3। S1 आउटर मोस्ट, S2 मिडिल वन एंड S3 द इनर मोस्ट। मिडिल वन इज द मोस्ट थिकेस्ट लेयर, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला मिडिल लेयर होता है, तो S2 इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। द डिपोजिशन ऑफ दीज लेयर्स, by deposition of these layer the flexibility of the cell wall finished। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है मैच्योर सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाएगी, रिजिडिटी बढ़ती चली जाएगी, नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो डिपोजिशन कहाँ पे होता है? इन S1, S2, S3 में। किन का डिपोजिशन होता है? जस्ट वी हैव सीन लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन। डिपोजिशन के टाइम पे कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जो अनअटेंडेड रह जाते हैं, जो पूरी तरीके से खाली रह जाते हैं। देखिए, डिपोजिशन जब हो रहा होता है लिग्निन का, क्यूटिन का, सुबेरिन का, तो उस समय वी कैन से कि द कंप्लीट एरिया इज बीइंग कवर्ड विद दोज मटेरियल्स। कभी कभार कुछ एरिया सेल वॉल का जाइलम के रीजन में या किसी और रीजन में अनकवर्ड रह जाता है। सो दोज अनकवर्ड एरियाज आर एक्सपोज इन फॉर्म ऑफ द पिट, ओपन एरियाज के फॉर्म में एक्सपोज होते हैं। दोज ओपन एरियाज आर कॉल्ड एज प्राइमरी पिट एरिया। So some left over का मतलब uncovered spaces in the cell wall even after the deposition of additional material called as pit area। आपने देखा होगा वुड्स में बहुत आसानी से देखने में आ जाते हैं पिट्स। छोटे प्लांट होते हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता, बट लार्ज वुडी प्लांट्स में आप आसानी से पिट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हिंदी में हम लोग कोटर बोला करते हैं, जो पिट्स कैन बी ऑब्जर्व इजीली। तो ये समझ में आया कि जब यूजुअली व्हाट शुड हैपन, द लिग्निन एंड क्यूटिन मस्ट डिपॉजिट कंप्लीटली देयर ऑन द इवनली यूनिफॉर्मली इट मस्ट बी डिपॉजिटेड, बट somewhere they remains undeposited, somewhere they remains unattended, uncovered। तो जो uncovered area होंगे वो खुले रह जाएंगे। That opened areas are meant for the transportation, these opened areas are called as pit areas। पहले बने इसलिए प्राइमरी पिट एरियाज कहेंगे। और इन्हीं पिट एरियाज से प्रोटोप्लाज्म एक सेल से निकल के दूसरे सेल में कनेक्ट होता है। द प्रोटोप्लाज्मिक एक्सचेंज कैन बी मेड पॉसिबल विद दिस पिट एरिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन। फ्रॉम दिस पिट एरियाज ओनली द प्रोटोप्लाज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड और कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द टू सेल्स टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल का एक्सचेंज इसी के थ्रू होगा। हम ये कह सकते हैं
कि और प्रोटोप्लाज्म के मटेरियल के एक्सचेंज होने के लिए एक दूसरे के साथ में जोड़े रखने के लिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एक पिट से निकल के दूसरे पिट के थ्रू या एक पिट से निकल के दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म में इंटर करते हैं। तो उन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो फ्रॉम दिस पिट एरिया प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स इंटर्स इनटू द एडजेसेंट सेल। इन्हीं प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो फ्रॉम दिस पिट एरियाज protoplasmic threads enters into the adjacent cell. Those threads are called as plasmodesmata. इनका यूज़ क्या होता है? दे आर मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन टू सेल्स, दोनों के बीच में एक्सचेंज और कंटिन्यूटी को एक कनेक्शन बना के रखने का काम करते हैं। अदरवाइज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिडिल लैमेला दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी और एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में उनको मेंटेन करके रखना। प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड का यूज़ किया था स्ट्रासबर्गर ने, सबसे पहले इन्होंने इसकी स्टडी की थी। सो रिमेंबर प्राइमरी पिट एरिया ओपनड एरिया है, अनकवर्ड एरिया है, और इनका यूज़ किसके लिए होता है? इनके थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड निकल के नेबरिंग सेल में जाता है और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसी के थ्रू सारे एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं बिटवीन टू प्लांट सेल्स। द वर्ड वॉज गिवन बाई द स्ट्रासबर्गर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम भी पूछा जाता है, तो ये यूज होता है एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और कनेक्टिव एजेंसी बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नॉर्मली अपना सेकेंडरी सेल वॉल का हो गया। मैंने बताया था कि कुछ एक केसेस में जब हाईली मैच्योर सेल्स होती है, जैसे ट्रैकीड्स हो गए जाइलम के, उन केसेस में एक एडिशनल लेयर ऑफ सेल वॉल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड और डिपॉजिटेड ओवर द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, सो हम उसकी बात कर रहे हैं। इन सम ऑफ द केसेस एडिशनल लेयर ऑफ सेल वॉल इज डिपॉजिटेड ओवर द सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब S1 S2 S3 के बाद भी कुछ और होते हैं। तो इस मॉडल को प्रेजेंट किया था फ्रे वाइसलिंग ने। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रे वाइसलिंग इन 1976 उन्होंने बताया कि अनदर लेयर मे बी प्रेजेंट ओवर द सेकेंडरी सेल वॉल। अकॉर्डिंग टू द फ्रे वाइसलिंग in 1976 he stated that another layer may be present over the secondary cell wall. उसको कहेंगे अपन टर्सरी वॉल, क्योंकि प्राइमरी हो चुका था, सेकेंडरी हो गया और उसके बाद में अब टर्सरी बचा। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो टर्सरी वॉल में भी दो लेयर होती हैं। बाहर की तरफ आपका मेम्ब्रेनस लेयर और अंदर की तरफ वार्टी लेयर, दो लेयर का बना होता है टर्सरी वॉल लेयर भी, मेम्ब्रेनस लेयर, वार्टी लेयर। तो अब आप देखें मिडिल लैमेला के बाद अगर हम काउंट करने जाते हैं तो नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल, देन S1 S2 S3 मेम्ब्रेनस लेयर, वार्टी लेयर। सो टोटल 3 + 2 + 1 टोटल 6 layers are there. That is a barrier between the two cells. ओके, मिडिल लैमेला के बाद में 6 लेयर हैं इधर और 6 लेयर उधर हैं, तो 12 लेयर का डिफरेंस है इन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स हियर। ओके, क्लियर। सो फ्राई वेसलिंग ने क्या बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर एक तीसरा लेयर भी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्सरी सेल वॉल। उसमें 2 लेयर होते हैं, बाहर की तरफ मेम्ब्रेनस लेयर या मेम्ब्रेनस स्ट्रेटम और अंदर की तरफ होता है वार्टी लेयर। इनका मानना था या इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था ओनली इन द ट्रैकेट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ट्रैकेट्स हमने देखा हुआ है जाइलम्स में मिलता है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम के। तो उसमें जो जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं उसमें ये देखा गया था द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी सेल वॉल, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल की बनी होती है जिसको हम कहते हैं जाइलन। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की 3 लेयर हमने देख ली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इफ इट इज प्रेजेंट तो इट विल प्रेजेंट देयर इन द जिम्नोस्पर्म्स ओनली इन द जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलन का बना होगा। एक बात कर रहे थे हम तीसरी स्ट्रक्चर की, हमने बोला था 3 लेयर्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल हो गया और मिडिल लैमेला। टर्सरी वॉल तो किसी किसी केस में होता है, बट प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लैमेला इज द 3 कॉमन स्ट्रक्चर्स। सो मिडिल लैमेला, मिडिल का मतलब बीच में, लैमेला मीन्स अ काइंड ऑफ पार्टीशन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टिकिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल वॉल। 2 सेल वॉल के बीच में उनको जोड़ने के लिए एक एडहेसिव स्टिकिंग स्ट्रक्चर होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसके कारण 2 एडजेसेंट सेल वॉल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सो द एडजेसेंट सेल्स इन अ प्लांट टिश्यूज आर हेल्ड टुगेदर बाय अ थिन स्टिकी amorphous लेयर ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल। द लेयर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। मतलब 2 एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में एक डिपॉजिटिंग लेयर होती है, एक लैमिलर लेयर होती है, दैट इज मेड ऑफ द स्टिकी मटेरियल और एमॉर्फस मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला।
मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्राइमरी सेल वॉल, टू प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होगा, दोनों सेल वॉल को जोड़ने का काम करेगा, सीमेंटिंग का काम होता है। दिस इज मेड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिडिल लैमेला इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, मोस्टली दिस इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है पीएमटी एग्जामिनेशन में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सॉफ्ट बिहेवियर ऑफ द फ्रूट्स दैट इज राइपेंड फ्रूट, और जबकि रॉ फ्रूट्स वहाँ पे टफ नेचर के होते हैं, उनको दबाने में वी हैव टू अप्लाई द एडिशनल फोर्स फॉर प्रेसिंग दोज वन, और तो भी वो टफ होते हैं, वाइल द राइपेंड फ्रूट्स आर सॉफ्टर इन अपीयरेंस। तो इसके पीछे रीजन यहाँ पे मिडिल लैमेला का ही होता है। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है। The middle lamella is going to dissolve by some of the agencies, some of the chemicals, and due to the dissolution of middle lamella, the ripened fruits are appeared in the soft appearance. Are you getting my point? Middle lamella के dissolve हो जाने के कारण the ripened fruits are appeared in the soft structure, और ये पूछा जाता है कि किस कारण से ये सॉफ्ट हुए हैं, तो सॉफ्ट होने का कारण क्या होगा? द राइपनिंग ऑफ द dissolution of the middle lamella. So in ripening fruit the middle lamella is dissolved to make the fruit soft. Just try to understand the structure. मैंने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की है। ये बीचों बीच एक पट्टी डाली हुई है, that strip is middle lamella. अब इस मिडिल लैमेला के बाहर की तरफ दिस वन एंड दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल, मतलब इधर आप जाएंगे तो एक और दूसरी सेल शुरू हो गई, तो वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होगी, और यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो प्राइमरी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद S1, S2 और S3 ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। हमने देखा यहाँ पे कि S2 इज द थिकेस्ट वन, और यदि ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक केस में तो टर्सरी सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट। सो दैट वाज द मेम्ब्रेनस लेयर एंड द वॉर्टी लेयर्स। इज इट क्लियर? तो सबसे अंदर की तरफ S3, सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर इज द प्राइमरी सेल वॉल, द इनर मोस्ट लेयर इज S3। अगर टर्सरी सेल वॉल होगा तो वहां पे वॉर्टी लेयर होगा, और इसके बाद में अब शुरू हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सो केमिकल नेचर ऑफ द सेल वॉल। अब स्ट्रक्चर के बाद में हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। केमिकली सेल वॉल दो तरीके के मटेरियल से बनी होती है, मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स या फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स या माइक्रोफाइब्रिल बेसिकली स्ट्रक्चरल स्केलेटन बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और मैट्रिक्स उन फ्रेमवर्क्स के बीच में धंसा हुआ जेली लाइक मटेरियल होता है जो उसको सपोर्टिव एजेंसी देता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मैट्रिक्स। Matrix is a jelly-like material present between the microfibrils and the fibrils. Microfibrils और fibrils के बीच में मिलने वाला एक jelly-like material है। Matrix हमेशा एक thick gelatinous material होता है, तो this is present in between the microfibril and fibril here in case of cell wall. Cell wall के microfibril और fibril के बीच में एक gelatinous material, jelly-like material present है, that is called as the matrix. मैट्रिक्स का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मेड ऑफ हेमीसेलुलोज 5 to 15%, पैक्टीन 2 to 8%, ग्लाइकोप्रोटीन 1 to 2%, लिपिड 0.5 to 3.0%, मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ वाटर दैट इज 30 to 60%। एक बार फिर से रिपीट करूँ कंपोजिशन, हेमीसेलुलोज 5 to 15%, पैक्टीन 2 to 8%, ग्लाइकोप्रोटीन 1 to 2%, lipid 0.5 to 3.0%, and water is maximum, that is 30 to 60%. Moving on to the fibril, because this is the major one, fibril या microfibril। microfibril के मिलने से fibril का formation होता है। So this is mainly made of cellulose। हम सब जानते हैं plant cell wall material cellulose होता है, major material cell wall का cellulose होता है। तो फाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल, जस्ट बिफोर फ्यू मिनट आई जस्ट टोल्ड यू कि फाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रक्चरल स्केलेटन ऑफ सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल वॉल का स्केलेटन बनाने का काम किसका होता है? फाइब्रिल्स का होता है या सेलुलोज का होता है। सेलुलोज के फाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल मिलकर स्ट्रक्चरल स्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, शेप प्रोवाइड करेंगे, और मैट्रिक्स इनके स्केलेटल फ्रेमवर्क के बीच में धंसा रहेगा, इनके बीच बीच में फिलअप रहेगा, जो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब बना किसका होता है फाइब्रिल या माइक्रोफाइब्रिल? मेजर मटेरियल होता है यहाँ पे सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, हम अब इसके बारे में देख लेते हैं। सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको पहले भी बताया था, होमो और हेट्रो का डिफरेंस। होमो का मतलब अगर एक जैसी यूनिट से मिलके बना हुआ है तो वो होमो कहलाएगा। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट्स आर देयर देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रो।
मतलब एक जैसी यूनिट ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना हुआ है तो वो होमोपॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आ गया, ग्लूकोज के साथ में कोई दूसरा एमिनो एसिड आ गया तो वो आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाएगा। सो सेलुलोज इज होमोपॉलीसैकेराइड मीन्स मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड का मतलब ये सब अपन आगे समझेंगे। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन द स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के पॉलीमराइजेशन से, लेकिन कैसा है, होमो है, मीन्स व्हाट, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम टाइप पॉलीमराइजेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल हियर। सो सेलुलोज इज द होमोपॉलीसेक्राइड, दैट इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The cellulose is the homopolysaccharide that is the polymer of glucose। और ऐसा माना जाता है कि one molecule of cellulose is made of 10,000 unit of glucose। एक सेलुलोज मॉलिक्यूल को बनाने में 1 यूनिट ऑफ सेलुलोज इज मेड ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। और ये 10,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं और एक अनब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे बनता है सेलुलोज वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे बनता है माइक्रोफाइब्रिल वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्लियर हुआ, होमोपॉलीसैकेराइड है मतलब ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज के 10,000 यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल सेलुलोज का फॉर्मेशन करती हैं। अब जब ये एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो दे आर गोइंग टू मेक अ लॉन्ग चेन दैट इज अनब्रांच्ड, नॉट अ ब्रांच्ड चेन, अनब्रांच्ड चेन बनाएंगे। लगभग 100 यूनिट सेलुलोज के मिलके एक माइसेली बनाती है। मतलब इसी तरीके की 100 चेन्स, जैसे अब हमने देखा कि 10,000 यूनिट मिलके एक सेलुलोज का फॉर्मेशन करेंगे और इसी तरीके की 100 चेन्स मिलेंगी और क्या बनाएंगे, एक माइसेली का फॉर्मेशन करेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 20 माइसेली, एक 100 चेन से एक माइसेली, 20 माइसेली मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करती हैं और लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके एक फाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एज्यूम, यू कैन फील द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर। कितना टफ मॉलिक्यूल है। 10,000 ग्लूकोज यूनिट ने मिलके एक चैन बनाई थी सेलुलोज की, ऐसी 100 चैन मिलती हैं। 10,000 ग्लूकोज यूनिट की 100 यूनिट्स मिलती हैं, 100 चैन्स मिलती हैं तो एक माइसेली बनती हैं। 20 माइसेली मिलती हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलते हैं तो एक फाइब्रिल बनता है। मैनी ऑफ द फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सो हाउ कॉम्प्लेक्स, हाउ स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल इज देयर, यू कैन फील देयर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द नेटवर्क, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में 3 तरीके के नेटवर्क देखने में आते हैं। अभी तो हमने एक सेलुलोज का देखा था, तो उसी नेटवर्क को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी ऑब्जर्व देयर इन द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल। पहला नेटवर्क होता है माइक्रोफाइब्रिल और जाइलोग्लाइकान्स का बना होता है। फर्स्ट नेटवर्क इज मेड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल एंड जाइलोग्लाइकान। दूसरा बना होता है पैक्टिक सब्सटेंसेस और गैलेक्टोनिक एसिड का। और तीसरा नेटवर्क जो मिलता है दैट इज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सो फर्स्ट नेटवर्क इज ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। जस्ट हमने देखा माइक्रोफाइब्रिल कैसे बनते हैं। सेलुलोज की 100 चेन्स, एक माइसेली, फिर 20 माइसेली मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो पहला नेटवर्क किसका होता है, माइक्रोफाइब्रिल और जाइलोग्लाइकान का। और ये नेटवर्क किससे बनता है, बीच में एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में, मतलब माइक्रोफाइब्रिल एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे। द सेकेंड नेटवर्क इज पैक्टिक सब्सटेंस एंड गैलेक्ट्रॉनिक एसिड, ये कैल्शियम ब्रिजेस से जुड़ने से बनता है। और ग्लाइकोप्रोटीन नेटवर्क, ये इन दोनों नेटवर्क के बीच बीच में इंटरवीव होता है, बीच में उलझा हुआ होता है। किसके किसके बीच में, माइक्रोफाइब्रिल और जाइलोग्लाइकान्स के नेटवर्क और साथ में पैक्टिक सब्सटेंस और गैलेक्ट्रॉनिक एसिड के बीच में इंटरवीव होता है। ठीक है, तो पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे नेटवर्क में कैल्शियम ब्रिजेस और तीसरा इन दोनों के बीच में इंटरव्यू होता है। कुछ और कंपोनेंट है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं जो सेल वॉल में मिलते हैं। पैक्टिन, पहला कंपोनेंट होता है पैक्टिन। दिस इज अ पॉलीमराइज्ड मिथाइलेटेड गैलेक्टोनिक एसिड। व्हाट इज पैक्टिन, दिस इज पॉलीमराइज्ड एंड मिथाइलेटेड गैलेक्टोनिक एसिड। सेकेंड वन इज हेमिसेलुलोज, दैट इज पॉलीमराइज्ड जाइलान, मैनन एंड गैलेक्टन्स। पैक्टिन क्या था, पॉलीमराइज्ड मिथाइलेटेड गैलेक्टोनिक एसिड। हेमिसेलुलोज पॉलीमराइज्ड जाइलान, मैनन्स एंड गैलेक्टन्स। अगला मटेरियल है लिग्निन, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है। सभी के फंक्शन पूछे जाते हैं नीट के लिए तो ध्यान रखेंगे। लिग्निन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, सिलिका स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए, क्यूटिन
वाटर लॉस को रोकता है, वैक्स वाटर रिपेलेंट के फॉर्म में काम करता है और ट्रांसपायरेशन रोकने का काम करेगा, सुवेरिन इम्परमिएबिलिटी मेंटेन करेगा वहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेल वॉल, दैट इज थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, हमने देखा है कि सेल वॉल की थिकनिंग किसके कारण होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल किसके कारण बनती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन, सुवेरिन एंड मैनी ऑफ अदर मटेरियल। तो जो थिकनिंग आती है, दैट थिकनिंग इज बीइंग कॉज्ड बाय डिपोजिशन, तो लगातार डिपोजिशन होते रहने के कारण थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी सेल वॉल की। लेकिन माय डियर चाइल्ड, नॉर्मली ये ऑब्जर्व होता है कि थिकनिंग इज यूनिफॉर्म, बट सम टाइम हमने वहाँ पे देखा भी था कुछ एरिया अनअटेंडेड रह जाते हैं तो उनको प्राइमरी पिट एरिया बोलते हैं। But my point of discussion is not that primary pit area, but the point of discussion is there somewhere that thickening or the deposition of material is forming a specific type of pattern in the plant cell, और इन पैटर्न्स को आप आसानी से वुड्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लकड़ियों को देखेंगे, वुड्स को देखेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफाइड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट दिखाई देता है। वो अरेंजमेंट पैटर्न अलग अलग तरीके का हो सकता है और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द डिफरेंट डिपोजिशन पैटर्न ऑफ द मटेरियल। कैसे पैटर्न दिखाई दे सकते हैं, रिंग शेप पैटर्न दिखाई देंगे तो उनको एन्युलर बोलते हैं। स्पाइरली अरेंज इस तरीके से दिखाई देते हैं तो स्पाइरल। स्केलरी फॉर्म स्केल्स के फॉर्म में आएंगे। रेटिकुलेट पूरी तरीके से नेटवर्क रहेगा। पिटेड बीच बीच में स्पॉटेड अरेंजमेंट होते हैं, ये आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीएमटी लेवल और द मेडिकल एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन। सेल वॉल की ओरिजिन कहाँ पे होती है, एट द पॉइंट सेल वॉल की ओरिजिन कहाँ पे होती है, जिस जगह पे सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, एट द पॉइंट ऑफ साइटोकाइनेसिस। जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है वही फर्स्ट पॉइंट होता है न्यू सेल के फॉर्मेशन का, उसी जगह पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। किस जगह पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, बेटा हर पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। किस पॉइंट पे सेल फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। किसके थ्रू डिटरमाइन होगा, सेल वॉल के पोजीशन को, सेल वॉल किस जगह पे बन रही होगी उसका डिसीजन कौन लेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स विल टेक द डिसीजन ऑफ दैट। और माइक्रोट्यूब्यूल डिसीजन लेने के बाद में जब प्लेन डिसाइड हो गया, पोजीशन डिसाइड हो गया, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। बहुत सारे फाइब्रिलर रीजन होते हैं, वो सारे फाइब्रिलर रीजन फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन कहते हैं। ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे जब गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे होंगे, तो उस समय हम फ्रैग्मोप्लास्ट भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन एट द पॉइंट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, एट द पॉइंट ऑफ साइटोकाइनेसिस, एट द पॉइंट ऑफ सेल डिवीजन, फ्रैग्मोप्लास्ट सबसे पहले बनते हैं और उसके बाद इसका जो ग्रोथ होता है दैट इज सेंट्रीपिटल होता है। सेंटर से लेके पेरिफेरल रीजन की तरफ फ्रैग्मोप्लास्ट जाते हैं और वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इन साइटोकाइनेसिस। प्लांट में साइटोकाइनेसिस इज एक्कम्पनीड बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन जिस जगह पे होगा तो उसी जगह पे सेल प्लेट आगे चल के मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन करेगी और इसी मिडिल लैमिला के ऊपर दूसरे सेलुलर मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, तो उसके कारण प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो समझ में आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे पहले डिसाइड करेंगे प्लेस को, उसके बाद फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा उस जगह पे, फ्रैग्मोप्लास्ट सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा और सेल प्लेट ही कन्वर्ट हो जाएगा मिडिल लैमिला के फॉर्म में और इसी मिडिल लैमिला के ऊपर दूसरे सेलुलर मटेरियल का डिपोजिशन होगा सो दैट इट कुड फॉर्म द प्राइमरी सेल वॉल। हमने देखा है कौन से मटेरियल हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा, ये डिपॉजिट होंगे एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द प्राइमरी सेल वॉल। ओके, सो डिपोजिशन ऑफ दीज मटेरियल्स मे बी ऑफ टू टाइप, दो अलग अलग तरीके से डिपोजिशन हो सकता है। पहला तरीका कहलाता है इंट्यूसेसेप्शन। जब डिपोजिशन फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्यूसेसेप्शन। दूसरा कहलाता है एपोजिशन, ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, एक लेयर बनेगी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो सबसे पहला डिपोजिशन पैटर्न होता है इंट्यूसेसेप्शन, जहां पे फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में डिपोजिशन हो, और जब लेयर्स के फॉर्म में हो तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूसेसेप्शन। प्राइमरी सेल वॉल का जब फॉर्मेशन होगा तो हमेशा वो इंट्यूसेप्शन से होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला कि दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। सो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन किस मेथड से होता है, हमेशा इंट्यूसेप्शन से, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल इंट्यूसेप्शन और एपोजिशन दोनों मेथड से फॉर्म हो सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेंसिन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो सेल वॉल की ग्रोथ में उसकी थिकनेस बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। एक्सपेंसिन इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज हेल्पफुल इन
एक्सपेंशन ऑफ द सेल वॉल को बढ़ाता है, इसीलिए उसको एक्सपेंशन कहा जाता है। ये किस तरीके से सेल वॉल को बढ़ाता है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ को इंश्योर करता है? इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजनिंग ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल को लूज कर देता है। लूज करने के कारण बीच में गैप बनता है और उन्हीं गैप के बीच में मटेरियल्स का डिपोजिशन होना शुरू होता है और ड्यू टू दैट डिपोजिशन द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल इज मेंटेन्ड। एक्सपेंशन वर्ड समझ में आया? स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो सेल वॉल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करता है। कैसे ग्रोथ में सपोर्ट करता है पूछा गया, तो यहाँ आपको बताना है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के बीच में लूजनिंग क्रिएट करेगा। लूजनिंग के कारण जो स्पेस बनेगा उन स्पेसेस में मटेरियल्स का डिपोजिशन होगा एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल द सेल वॉल विल इंक्रीज इन द लेंथ एंड द थिकनेस। दैट इज वाई द एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। कुछ और पॉइंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। हमने कई तरीके के मटेरियल देखे सेल वॉल में जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। उसमें हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है। तो हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन इनका सिंथेसिस होता है गोल्गी बॉडी में या तो डिक्टियोसोम में। प्लांट की गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन आर सिंथेसाइज देयर इन द गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम। क्यूटिन, सुबेरिन आर सिंथेसाइज देयर इन द स्फेरोसोम। जबकि सेलुलोज का सिंथेसिस कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है उनको आसानी से हम स्टेन कर सकते हैं विद स्टेन जिंक क्लोर आयोडीन। Are you getting my point? The cell wall which are made of cellulose only, they are being easily stained with the zinc chloriodine solution. Function of the cell wall बहुत शॉर्ट में हम सब जानते हैं। शेप ऑफ सेल प्रोवाइड करना, टफ है इसलिए सेल शेप प्रोवाइड करती है। टफ होने के कारण मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। हमने देखा था प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्म में ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में सपोर्ट करती है, एक्सचेंज का काम करती है। एक टफ और रिजिड लेयर होने के कारण दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इनसाइड the plant cell. So this is what that can work as a mechanical barrier for the undesirable material. So this is what all about the cell wall. My dear student, हम cell wall तो complete कर चुके हैं, लेकिन एक concept what we were learning that was cell envelope. Cell envelope में हमने देखा था, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, cell membrane, cell wall, और यदि कोई तीसरी लेयर वहाँ पे present है तो that third layer is also being included there in cell इनवेलप। सो हियर दो लेयर तो हमने देख लिया, दो मेजर लेयर तो हमेशा मिलते हैं, बट इन सम ऑफ द एनिमल सेल्स एडिशनल लेयर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज सेल कोट। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द सेल कोट। द सेल कोट, द थर्ड टाइप ऑफ एनवेलप, सेल एनवेलप का थर्ड कंपोनेंट सेल कोट। कुछ स्पेशल केसेस में अगर सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एडिशनल कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल कोट। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक कवरिंग, अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक कवरिंग रिपोर्ट की गई, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। इन एनिमल सेल द सेल कोट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम बाय मार्टिनेज एंड द पैलेमो इन 1970। ग्लाइकोकैलिक्स एनिमल सेल कोट को या एनिमल सेल वॉल इसी तरीके से पूछा भी जाता है क्वेश्चन, एनिमल सेल वॉल को क्या कहेंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? मार्टिनेज एंड पैलेमो ने। तो एनिमल सेल में बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नली कवर्ड विद द ग्लाइकोकैलिक्स। हमने यूग्लिना और पैरामीशियम में पेलिकल देखा है, वो अदर मैटर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपका ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा। ये किसका बना होता है? ओलिगोसैकेराइड्स, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट का बना होगा। बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं इसको। मैमेलियन सेल्स में स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है दैट इज सियालिक एसिड। सियालिक एसिड का रोल होता है द बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन मीन्स साल्ट ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम साल्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे मिलता है हाइल्यूरोनिक एसिड। एनिमल ग्लाइकोकैलिक्स में हाइल्यूरोनिक एसिड मिलेगा। हाइल्यूरोनिक एसिड नीट के लिए आप तैयार रहें, दैट इज कंसिडर्ड एज द एनिमल सीमेंट। हाइल्यूरोनिक एसिड क्या कहलाता है? एनिमल सीमेंट कहलाता है, मतलब एनिमल सेल्स को जोड़ने का काम करता है। फंक्शन क्या होगा सेल कोट का? जिस तरीके से सेल वॉल का फंक्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेफ टू द सेल, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें मिलने वाले ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एक सेल रिकॉग्निशन एजेंसी के फॉर्म में काम करते हैं, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन एजेंसी के फॉर्म में काम करते हैं। एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण ही ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर पाती है, सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है, और उसी के बेसिस पे दैट सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू अलाउ वेदर द मटेरियल हैज टू मूव इन और इट शुड नॉट
permitted to move into the सेल मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट क्लियर हो आपका। हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, पर्टिकुलर टाइप के सेल जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म और ओवम का रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बात करें पॉलिनेशन के टाइम पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड, दोनों अगर एक जैसी नहीं होंगी तो वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस टाइप के रिकॉग्निशन के लिए आपको ग्लाइकोकैलिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द cell envelope, where we have completed all the structures, cell membrane, then we have completed the cell wall, now we have completed the cell coat। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स, देन प्रोटोप्लाज्म, देन विल मूव ऑन टू द endomembrane system and other cell organelles। So till the time, thank you, thanks for watching, thanks for being with me।